Hello students, now we are going to discuss some more question on differential equation. So the question is, find the particular solution of the differential equation dy by dx is equal to 1 plus x plus y plus xy, and it is given that y is equal to 0 when x is equal to 1. It is CBSE 2014 asked question, and now we have to find out the solution of that differential equation at y is equal to 0 and x is equal to 1. Okay, so how would we solve it? See here. Now first given equation is dy by dx is equal to 1 plus x plus y plus xy, then dy by dx is equal to 1 plus x. Now we can take y as common from here. So again dy by dx is equal to, when you will take 1 plus x as common, okay, so you will get 1 plus y in the second bracket. We are doing the question by variable separable method, so that we'll send 1 plus y in the denominator of dy and we'll send that dx on right hand side. So it will be like this: dy upon 1 plus y is equal to 1 plus x dx. So हमने x x और y y को सेपरेट कर लिया है. Now integrating both the sides. So 1 upon 1 plus y dy is equal to integration 1 dx plus integration x dx. Okay. See here, it is 1 upon 1 plus y dy will be log 1 plus y. t कंसिडर कर लेंगे उससे, तो ठीक है, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, x के रिस्पेक्ट में 1 का इंटीग्रेशन x होगा और x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2 होगा, और इन दोनों का एक कंबाइन जो कांस्टेंट होगा वो c होगा. आप यहाँ पर रीजंस लिख सकते हैं. रीजंस क्या होंगे? इफ 1 प्लस वाई इज इक्वल टू टी, देन dy इज इक्वल टू dt. So it will be 1 by t dt. इंटीग्रेशन 1 by t dt will be log t. एक तो ये आप रीज़न लिख सकते हैं. दूसरा आप लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx इज इक्वल टू x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c. ओके, सो गिव इट इक्वेशन 1. नाउ ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन होता अगर क्वेश्चन में हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन के बारे में नहीं पूछा होता. उसने हमसे फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन कहा है, वो भी y इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 1 पर. अगर ये इस टाइप से क्वेश्चन नहीं दिया होता, सिर्फ इक्वेशन देकर बोला होता सॉल्यूशन निकालो, तो ये हमारा आंसर होता यहाँ पर. बट हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन का बोला है, इट मीन्स कि हमें यहाँ पर c की वैल्यू भी निकालना होगी, और वो c की वैल्यू फिर हम यहीं इसी इक्वेशन 1 में रखेंगे. ठीक है, तो वो हमारा फाइनल सॉल्यूशन होगा. सो जस्ट गिव इट इक्वेशन 1. Okay, so now what we will do, we'll put y is equal to 0 and x is equal to 1.
because it is given. So log 1 plus 0 is equal to 1 plus 1 upon 2 plus c. So it will be log 1 and it will be 3 by 2 plus c. Log 1 is 0. So the value of c is minus 3 by 2, and we will write here the reason. Log 1 is equal to 0. Now we got the value of c, so that's why we'll put this value in equation 1. Put the value of c in equation 1, and our equation 1 is log 1 plus y is equal to x plus x square by 2 minus 3 by 2. ये जब हमने इक्वेशन 1 में पुट की वैल्यू, सो ये हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन होगा. ठीक है. Now the next question we will discuss. Solve the differential equation dy by dx is equal to 1 plus x square plus y square plus x square y square, and given that y is equal to 1 when x is equal to 0. It is CBSE 2012 asked question. Okay, so we will find out the solution of this. आप देखिए, बिल्कुल अभी जो क्वेश्चन इससे पहले किया है हमने उसी तरह है, बस आपको वेरिएबल्स को सेपरेट करना है. सो वी विल राइट दैट गिवन इक्वेशन इज dy by dx is equal to 1 plus x square plus y square plus x square y square. So it will be dy by dx is equal to 1 plus x square plus y square into 1 plus x square. Now dy by dx is equal to, when you will take 1 plus x square as common, then you will get 1 plus y square in the another bracket. अब आपको इस स्टेप पर आकर और वेरिएबल्स को सेपरेट करना है. सो व्हेन यू सेपरेट द वेरिएबल, देन यू विल गेट 1 upon 1 plus y square dy is equal to 1 plus x square dx. वेरिएबल सेपरेट हो चुके हैं. नेक्स्ट स्टेप क्या होगी? इंटीग्रेशन. सो इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स. जब आप इसे इंटीग्रेट करते हैं सो आपको यहाँ पर 1 और x स्क्वायर को इंटीग्रेशन अलग अलग देना होगा. ठीक है. सो 1 upon 1 plus y square dy, ये tan इनवर्स y होगा इसका इंटीग्रेशन. ठीक है, क्योंकि y के रिस्पेक्ट में ही हो रहा है. इज इक्वल टू 1 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में, इट विल बी x, एंड एक्स स्क्वायर का x के रिस्पेक्ट में x क्यूब अपॉन 3, और प्लस इन दोनों का जो कंबाइन कांस्टेंट होगा वो c होगा. और आप यहाँ पर लिखेंगे कि इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx will be x to the power n plus 1 upon n plus 1 plus c. This will be the integration. Okay. बट अब आप देखिए कि आपको क्वेश्चन में फिर से पर्टिकुलर सॉल्यूशन कहा था. अगर किसी क्वेश्चन में पर्टिकुलर सॉल्यूशन नहीं कहा जाता है, x और y की एक किसी पर्टिकुलर वैल्यू पर आपको सॉल्यूशन निकालना है, ऐसा नहीं कहा जाता है, तो आपका ये आंसर होगा जहां आप इसे इंटीग्रेट कर देते हैं. So this will be the solution, but now we have to find out the particular solution. और वो भी किस पर? वो हमें निकालना है
y इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 0 पर, तो हम पहले तो इसको इक्वेशन 1 दे देंगे और फिर नाउ पुट y इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 0। जब आप ये वैल्यू रखते हैं दोनों, तो यहाँ देखिए tan इनवर्स y की प्लेस पर आपने रखा 1 इज इक्वल टू x की प्लेस पर आपने रखा 0। ओके, सो क्या होगा, यहाँ पर होगा tan इनवर्स, और इस इनवर्स को कैंसिल आउट करने के लिए हम 1 की वैल्यू देखेंगे कि tan में कितनी होती है। सो tan 45 जो होता है पाई बाय 4, वो वैल्यू होती है 1, और यहाँ पर इक्वल टू में आ जाएगा c। सो tan इनवर्स एंड tan कैंसिल, so you will get the value of c as pi by 4. This is the value of constant. So now put the value of c in equation 1. जब आप equation 1 में वैल्यू रखते हैं, so tan inverse y is equal to x plus x cube upon 3 plus pi by 4. Now this will be the particular and final solution of this question. Now the next question is, find the particular solution of the differential equation x minus y into dx plus dy is equal to dx minus dy, and given that y is equal to minus 1 when x is equal to 0. Means you have to find out the solution on these two values. So for that particular solution, first we need to find out the solution of this. So we will write that given equation is, so it is x minus y dx plus dy is equal to dx minus dy. Okay, now in the next step what you will do, dx plus dy is equal to dx minus dy upon x minus y. इससे आपने राइट हैंड साइड पर भेज दिया x माइनस वाई जो ब्रैकेट है उसे। सो ये इनटू में है तो ये dx माइनस dy के डिवीजन में चला जाएगा। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स, जब आप इंटीग्रेट करते हो दोनों तरफ तो ये कुछ इस तरह से हो जाता है, इंटीग्रेशन dx प्लस dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dx माइनस dy अपॉन x माइनस y. ओके, now when you will give that integration separate to dx and dy, and here what you will do, dx माइनस dy अपॉन x माइनस y. जब आप यहाँ पर x माइनस y को t कंसीडर करते हैं, देखिए लेट x माइनस वाई इज इक्वल टू टी, तो जब आप इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं किसी के रिस्पेक्ट में नहीं, सिर्फ डिफ्रेंशिएशन, सो सिर्फ डिफ्रेंशिएशन में हो जाएगा dx माइनस dy इज इक्वल टू dt. ठीक है, सो जब dx माइनस dy इज इक्वल टू dt होगा तो ये dx माइनस dy की प्लेस पर dt आ जाएगा और x माइनस वाई की प्लेस पर t आ जाएगा. सो इट विल बी लाइक दिस, इंटीग्रेशन dx इंटीग्रेशन dy इज इक्वल टू, अब यहाँ आप ध्यान से देखिए
मैं इस dx माइनस dy की प्लेस पर तो dt लिख रहा हूँ और x माइनस वाई की प्लेस पर t लिख रहा हूँ. ओके, सो नाउ व्हेन यू विल सॉल्व दिस क्वेश्चन देन इंटीग्रेशन ऑफ dx, आपको इंटीग्रेशन के इंट्रोडक्शन में ही बताया था कि इंटीग्रेशन ऑफ dx अगर है सिंपल, इट मीन्स यहाँ कुछ नहीं है, मतलब 1 है. और अगर यहाँ पर 1 है तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है, क्योंकि ये x के रिस्पेक्ट में है, इसलिए आप यहाँ पर x लिख सकते हैं. यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ 1 है और वो भी y के रिस्पेक्ट में, तो ये y होगा इज इक्वल टू 1/t dt. 1/t dt का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है log t. और इस इंटीग्रेशन के बाद यहाँ पर आप एक कॉमन कांस्टेंट लगा सकते हो, वो कांस्टेंट यहाँ भी आएगा, तो जो भी प्लस माइनस में कांस्टेंट होगा C1 C2 का, उसी की जगह पर हम एक सिर्फ लास्ट फाइनल कांस्टेंट यहाँ पर लिख रहे हैं C. अब देखिए, वैसे तो ये सॉल्यूशन है, बट क्योंकि हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है और वो भी y इज इक्वल टू 1 पर, पहले हम यहाँ पर x प्लस वाई और log t की प्लेस पर, t हमने कंसिडर किया था x माइनस वाई, तो हम यहाँ पर x माइनस वाई लिख देते हैं प्लस c, बट वी विल टेक इट एज इक्वेशन 1. वाई? बिकॉज वी हैव टू फाइंड आउट द पर्टिकुलर सॉल्यूशन, and particular solution at y is equal to -1 and x is equal to 0. जब आप यहाँ पर y is equal to -1 and x is equal to 0 पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 0 -1 then log 0 and minus of -1 means +1 plus c, so -1 is equal to log 1 plus c and log 1 is 0, so that's why c is equal to -1. You will write here log 1 is equal to 0. So now put this value of c in equation 1. So equation 1 will be x plus y is equal to log x minus y minus 1. ये c की प्लेस पर हमने यहाँ पर -1 पुट कर दिया है. So this is the final solution. Now we are going to discuss one more important question. आप देखिए क्वेश्चन है, if y of x is a solution of 2 plus sin x upon 1 plus y dy by dx is equal to minus cos x and y of 0 is equal to 1. देखिए यहाँ पर y of 0 is equal to 1 है, मीन्स इससे पहले जो हमने क्वेश्चंस किए उसमें y की वैल्यू और x की वैल्यू गिवन थी, वो अब इस फॉर्म में दे दिए. अगर y of x सॉल्यूशन है, देखिए y of x सॉल्यूशन है मीन्स आप जो भी सॉल्यूशन निकालेंगे वो y इज इक्वल टू समथिंग होगा, और जो भी होगा y की जो भी फंक्शन होगा y इज इक्वल टू समथिंग में वो x का फंक्शन होगा. ये उसने पहले ही कह दिया है कि आपको y इज इक्वल टू के फॉर्म में आपको आंसर निकालना है, सबसे पहली बात. दूसरी बात, जब आप पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालते हैं तो उस केस में आपको y और x दोनों की वैल्यू गिवन होती है. यहाँ पर y ऑफ x अगर एक सॉल्यूशन है तो इट मीन्स x की प्लेस पर जब हम 0 पुट करेंगे तो हमें 1 मिलेगा, यानी उसने हमें यहाँ पर इनडायरेक्टली x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 1 दे दिया है. तो x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 1 पर हम सॉल्यूशन निकालेंगे, पहली बात. फिर उसके बाद लास्ट में आपको अगर y ऑफ x आपका सॉल्यूशन है तो जो भी आपका फाइनल आंसर आएगा, यानी जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन आएगा, उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन में आपको x की प्लेस पर π/2 रखना है. आप वो π/2 रखकर और आप फंक्शन की वैल्यू निकालोगे, वही आपका फाइनल सॉल्यूशन होगा. ठीक है, आइए देखते कैसे. So the given equation is, it is 2 plus sin x upon 1 plus y dy by dx
इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स। अब सबसे पहले तो ये कि अगर हमें y निकालना है तो हम पहले dy बाई डी एक्स को सेपरेट कर लें। सो आप देखिए यहाँ पर ये कुछ इस तरह से हो जाएगा कि 1/1 प्लस वाई तो यहीं रहेगा, डी वाई भी यहीं रहेगा, माइनस कॉस एक्स आर एच एस में है, और इस 2 प्लस साइन एक्स को अगर मैं आर एच एस में भेजूंगा तो ये मल्टीप्लाई से कहाँ चला जाएगा, डिवीज़न में चला जाएगा, और ये डी एक्स भी अगर मैं आर एच एस में भेजूंगा तो ये भी इनटू में चला जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमने क्या किया, वेरिएबल सेपरेट कर लिए। अब वेरिएबल सेपरेट करने के बाद हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, हम इंटीग्रेट करते हैं। सो इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स, हम इंटीग्रेट कर लेते हैं दोनों साइड्स को। जब हम दोनों साइड्स को इंटीग्रेट करते हैं तो हमें कुछ इस तरह से मिलता है, 1/1 प्लस वाई डी वाई इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स अपॉन 2 प्लस साइन एक्स डी एक्स। अब यहाँ पर 1/1 प्लस वाई डी वाई तो log 1 प्लस वाई हो जाएगा, वो हमें पता है, हम इसे t कंसिडर कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए 1 प्लस लेट 1 प्लस वाई इज इक्वल टू टी, सो इट विल बी डी वाई इज इक्वल टू डी टी, एंड 2 प्लस sin x is equal to u, so you will get cos x dx is equal to du। जब आप ये दोनों वैल्यूज यहाँ रखेंगे so you will get 1/t dt is equal to minus cos x dx। cos x dx की प्लेस पर तो du आ जाएगा और ये भी आएगा 1/u। ओके, सो 1/t dt होगा log t इज इक्वल टू माइनस log u प्लस, अब ये दोनों वैल्यूज लॉग के फॉर्म में है तो मैं इस कांस्टेंट को भी लॉग के फॉर्म में लिख सकता हूँ। ऐसा मैंने इसलिए किया है क्योंकि अभी आगे आप देखेंगे कि लॉग वाला फॉर्मूला से हमें इसे कंपेयर करने में इजी होगा ये, क्योंकि ये कांस्टेंट है, इसे हम लॉग के फॉर्म में भी ले सकते हैं। ठीक है, अब आप देखिए मैंने यहाँ u और v किसे कंसिडर किया था तो उसकी मैं यहाँ पर वैल्यू रख देता हूँ, log t कंसिडर किया था हमने 1 प्लस वाई को इज इक्वल टू माइनस लॉग u हमने कंसिडर किया था 2 प्लस साइन एक्स को एंड प्लस log c। ओके, नाउ व्हेन वी विल शिफ्ट दैट log left hand side, so it will be log 1 plus y plus log 2 plus sin x is equal to log c, log m plus log n, so it will be log 1 plus y into 2 plus sin x, log m into n हो जाएगा, इज इक्वल टू लॉग सी हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ आप ब्रैकेट में लिख देंगे log m प्लस log n इज इक्वल टू log mn। नाउ बोथ द साइड्स वी हैव log, तो हम जब दोनों तरफ हम कंपैरिजन करेंगे सो 1 प्लस वाई इंटू 2 प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू सी हमें मिलेगा।
अब देखिए यहाँ पर, क्योंकि हम लॉग को हटा चुके हैं, हम इंटीग्रेट कर चुके हैं, तो अब हमारे पास में जो वैल्यू है उसमें से हमें y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्योंकि y ऑफ x ही हमारा सॉल्यूशन है। तो जो y इज इक्वल टू में हम जो वैल्यू निकालेंगे वो x के फॉर्म में होनी चाहिए। ओके, y इज इक्वल टू fx होना चाहिए। सो सी हियर 1 प्लस वाई इज इक्वल टू सी के अपॉन में 2 प्लस साइन एक्स को मैंने सेंड किया, एंड y इज इक्वल टू सी अपॉन 2 प्लस साइन एक्स एंड -1, ये +1 को उस तरफ भेजा। तो आप देखिए y इज इक्वल टू, ये पूरा फंक्शन x का फंक्शन है, ठीक है। सो y इज इक्वल टू एफ एक्स, मीन्स जो y उसने हमसे कहा था कि y ऑफ x जो है वो सॉल्यूशन है, तो यही हमारा सॉल्यूशन है। बट क्या करना है हमें कि अभी हमें सिर्फ सॉल्यूशन का नहीं बोला था, हमें ये कहा था कि y ऑफ 0 इज इक्वल टू 1 है। तो सबसे पहले तो हमें x इज इक्वल टू 0 पर और y इज इक्वल टू 1 पर यहाँ से इस कांस्टेंट c की वैल्यू निकालनी है, वो फिर हम यहीं पुट करेंगे, इसलिए इसको हम इक्वेशन 1 दे देते हैं, ठीक है। तो वो आएगा हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन। बट वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन को भी फिर हमें x की जगह पर π/2 के साथ वैल्यू निकालनी है, तो वो अभी हम देखते हैं, ठीक है। सो इट इज इक्वेशन 1, एंड नाउ सिंस y ऑफ 0 इज इक्वल टू 1, therefore put x is equal to 0 and y is equal to 1. So when we will put y is equal to 1 and x is equal to 0, so 1 is equal to c upon 2 plus sin 0 -1, so 1 is equal to c upon 2 plus sin 0 will be 0 -1, so 1 is equal to c upon 2 -1। जब आप इस -1 को उस तरफ सेंड करेंगे, so it will be 2 is equal to c upon 2, and it will be c is equal to 4। इस c इज इक्वल टू 4 को आप इक्वेशन 1 में रख दीजिए। पुट c इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1, सो y इज इक्वल टू 4 अपॉन 2 प्लस साइन एक्स -1। नाउ दिस इज द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। अब ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन है और y ऑफ x सॉल्यूशन है इस क्वेश्चन में, ये वो हमें पहले ही क्वेश्चन में बता चुके हैं। और हमें y ऑफ π/2 की वैल्यू निकालनी है, यानी हमें x की प्लेस पर π/2 रखना होगा। सो हम यहाँ पर लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू π/2। तो देखिए y ऑफ π/2 is equal to 4 upon 2 plus sin π/2 -1, so 4 upon 2 plus sin 90, sin 90 1 होता है, so y of π/2 is equal to 4 upon 3 -1, और 4 upon 3 -1 को जब आप सॉल्व करोगे, so you will get 1/3, so y of π/2 is equal to 1/3. This is the final solution of this question. Okay.